स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। एफ पे स्टार्ट हो गया लाइव। इस पे जब आप चालू करें तो माइक ऑन कर लीजिएगा। इस पर स्टार्ट कर दिए माइक ऑन कर लीजिए, इस पे चालू कर लीजिए, स्टार्ट हो गया। हेलो हेलो। जैसे हम इसको मूव करेंगे वो भी उसी जगह मूव करेगा, ये होता है सिमेट्री। ये पहला हो गया सिमेट्री वाला, विथ मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए। प्रोफाइल सेंटर के लिए जो बनाया था उसको लेंगे, इंसर्ट कंपोनेंट। हेलो प्रोफाइल सेंटर चलिए फिर अभी आते हैं। अभी तो क्लास आपका, इसके बाद आपकी क्लास है इसी में वॉइस तो देखो इसमें हो इसका ना होगा सर, थोड़ा 5 मिनट और कर लीजिए। 2-3 मिनट आप ये सर अश्वनी। हेलो हेलो हेलो। ओके ठीक, मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? यस ओके। सो इट वुड बी बेटर कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, कोई भी डाउट अगर हो आप लोग टेक्स्ट मैसेज का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इफ़ आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड योर टेक्स्ट मैसेजेस देन आप एक बार कोई कमेंट कर दीजिएगा कि सर आई नीड टू आस्क समथिंग, इस तरीके से, ठीक है। वरना इको की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दैट्स वन फाइन। स्क्रीन विजिबल है सबको? दिस वन ठीक, फाइन। विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन नाउ। काइंडली म्यूट द माइक्स, अगर आप लोग के माइक ऑन है तो उसे म्यूट कर लीजिए सर। थैंक्स अ लॉट। सो आई थिंक सो एक आध मिनट हम वेट कर लेते हैं। जस्ट विल स्टार्ट एट 16:05। Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so I'll start the presentation now. So I welcome you all in this workshop on NXCAM, the understanding role of NXCAM for CNC programming. My name is Karamveer Singh and I am the CAT faculty at CAT Center Azharganj, Lucknow. The basic outline for the presentation is about myself, my brief introduction of NXCAM, reason why one should go with NXCAM,
tools that will be required throughout this presentation and ultimately the process which we'll be going through. So my name is Karamveer Singh. My highest education qualification is MTech with honors in mechanical engineering. I have completed my MTech from IET, State Government College of Uttar Pradesh under AKTU. I have more than 5 years of technical training in this field of computer-aided design, drafting, analysis and manufacturing. One of my highest achievement is I have represented India at International Science and Engineering Camp at Seoul National University in South Korea. So let's see. Okay. So this was my brief introduction. Now comes the role why one should go with the NX CAM, and ultimately what do we understand by the product life cycle. Now product designing, or this is basically the ultimate field of industrial design. The root of industrial design lies with respect to the customer. The requirement, ultimately the requirement of the customer, and based upon that requirement, the engineers or scientists have to prepare a brief layout with respect to the customer requirements. Now what do you mean by brief layout design? Brief layout design deals with the direct relation with the requirement. For example, if I need to transmit the power, just a minute. For example, now I need to transmit the power, and the power transmission is similar to that of a gearbox and differential. That is, during the motion or during the machine operation, there will be difference between the two components of driver and driven segment. In that case, if such a problem occurs, I will recommend that one should go with universal couplings. Now this is a brief design layout that I'll sketch it out. Okay, fine, this is the position, I should implement a universal coupling over there, and उसके बाद हम लोग convert करेंगे उस basic design को, of course with the help of engineering data, मतलब machine design का use करके and data का use करके we'll obtain the numerical value for the dimensions and geometry, और फिर उसका एक CAD model prepare करेंगे. 3D CAD मॉडल प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इस बात पे है कि अगर आप 3D CAD मॉडल प्रिपेयर नहीं करेंगे, यू विल बी गोइंग विद मॉडलिंग दैट 3D पार्ट. ओके, मॉडलिंग, फिजिकल मॉडलिंग. तो फिजिकल मॉडलिंग में हमारे पास एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो मटेरियल के हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हो. तो इस प्रोसेस को एलिमिनेट करके वी विल बी सेलेक्टिंग अ 3D CAD मॉडल. द पॉपुलर CAD मॉडल्स आर CATIA, SolidWorks एंड NX CAD. मैं आपको कुछ मॉडल्स दिखाऊंगा किस तरीके की डिटेल मॉडलिंग आप अचीव कर सकते हैं. एंड द मॉडल विच यू कैन सी इन दिस इमेज, इट्स CATIA मॉडल. ओके, जब आपने मॉडल प्रिपेयर कर लिया, देन यू गो विद द एनालिसिस. दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग, तो जो क्रॉस होगा दैट विल कनेक्ट द कपलिंग एंड द शाफ्ट. तो क्रॉस कितनी शेयर स्ट्रेसेस एक्सेप्ट कर सकता है, टू नो दैट वी नीड टू गो विद द कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर. ओके, then once you have redesigned your component and got through the rectification of the geometries, then we come up with the final manufacturing process. Now here we need to understand the major difference between manufacturing and production. Okay, so the main difference behind the manufacturing and the production concept is, production deals with whole of the procedure. Even after manufacturing, the cost that is incurred on the product marketing, all of that, it is included in the production part.
whereas manufacturing is rigidly constrained with the conversion of raw material into finished product. Now, for example, I have obtained a certain part using casting process. We all know that there are n number of defects when we go with the casting process, and rigorous machining is required. To achieve that machining process or to simulate that machining, we need to go either we need to make n number of specimen और उन पे हम लोग मशीनिंग परफॉर्म करके देखें, अलग अलग टूल चेंज करके देखें किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, या हम लोग NXCAM जैसे सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं. NXCAM is one of the known software with respect to simulation of machining operations. Okay, so we will go through in more details with respect to the NXCAM procedure. So this is how you go with the having a customer requirement, developing a brief sketch, obtaining the numerical values from engineering data handbook से, और हमारे जो core pillars हैं इंजीनियरिंग के, थर्मल, फ्लूइड और मैकेनिक्स, उनका यूज़ करके हम ज्योमेट्री को ऑब्टेन करते हैं और फिर 3D मॉडल प्रिपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग को सिमुलेट करके डेटा ऑब्टेन करते हैं कि किस तरीके से रॉ मटेरियल से इस पार्ट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं. ये पूरा चेन है एंड दिस इज थ्रू आउट CACA, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेंस और कंप्यूटर एडेड इक्विपमेंट से. तो असिस्टेंस है कंप्यूटर की न्यूमेरिकल वैल्यू को सिमुलेट करने के, बट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, सो वी हेयर एट कैट सेंटर मेक श्योर दैट जो कैंडिडेट आ रहा है उसको इंजीनियरिंग नॉलेज जितनी भी हो, है ना, उसमें इंटीग्रेशन हो जाए और एडिशन हो, ताकि वो आइडियाज को कन्वर्ट कर पाए, नॉट जस्ट लर्निंग दी कैट टूल्स. ओके, वो टूल आप कहीं से भी पढ़ लोगे, लेकिन कैसे आप इंजीनियरिंग डेटा को इन्वॉल्व करोगे वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है. Now comes the advantages of virtual product development. Number one, of course, आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ों को बनाना, उनको रन कराना, इट रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर. ओके, तो इस केस में क्या होगा, स्किल तो इसमें भी रिक्वायरमेंट, बट नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. यू मे गेट दी ऑप्टिमम रिजल्ट फ्रॉम अ टीम ऑफ से 20%, जबकि उस केस में आपको n नंबर ऑफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी डिफरेंट ग्रेडिंग की. ओके, तो ओवरऑल एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं. फास्टर रीडिज़ाइन होता है कंपोनेंट, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो. अगर हम सोचें कि हम फिजिकल सपोज करो एक जनरेटर की केसिंग आप बना रहे हो और जनरेटर की केसिंग आपने बनाई, उसमें वेंट दिए हुए, अब वेंट से हीट ट्रांसफ़र हो रही है सराउंडिंग में. अब आपने ऑब्टेन किया कि यार इसका जो हीट डिसिपेशन है दैट इज़ टू बी इंक्रीज. अब उस केस में हमें अगर हमारे पास कंप्यूटर एडिट का एडवांटेज नहीं है, तो हम लोग जो वेंट्स हैं उनको रीडिज़ाइन करेंगे और प्रैक्टिकली उसको ऑब्टेन करेंगे, मतलब फिजिकल मॉडल बनाएंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे. ये चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं CFD का यूज़ करके, ANSYS CFD, कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, और इसके थ्रू आप फ्लूइड का मोशन स्टडी कर सकते हो, राइट. तो ये फास्टर डिज़ाइन को एक्सेलरेट करता है. वेस्ट रिडक्शन होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं फिजिकली बना रहे हैं, वो नंबर ऑफ इटरेशंस रिड्यूस हो जाते हैं. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम लोग अचीव कर पाएंगे. टाइम टू मार्केट जो है वो आपका बढ़ जाएगा, मतलब आपके पास ज़्यादा मार्केटिंग टाइम अवेलेबल होगा और कम टाइम लगेगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नाउ कम्स द स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्रीज. नाउ दिस सेगमेंट स्पेसिफिकली एडेड सो दैट आपको एक ग्लिम्स मिल पाए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है व्हेन यू गो विद द जॉब सिलेक्शन. नाउ इफ वी आर इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल इंडस्ट्री प्रोडक्शन सेक्टर में, तो फर्स्ट स्टेप विच यू शुड अडॉप्ट इज पहले पता लगाओ कि आपका इंटरेस्ट किस लेवल की प्रोडक्शन में है. अगर हमारा इंटरेस्ट कास्टिंग में है तो हम सर्च आउट करेंगे कि कास्टिंग कौन कौन सी कंपनी ज़्यादा ऑप्ट करती. हेयर यू कैन ऑब्जर्व, जैसे पावर में 6% है, रेलवे 6% यूज़ करता है, पाइप एंड फिटिंग 7%, ऑटो में 72%, एग्रीकल्चर 7%. इस तरीके से आपने पहले एक चार्ट में फिगर आउट करना. These companies are dedicated on casting, okay, the ratios. Then एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया हाँ ये कास्टिंग की कंपनीज है, नाउ यू कम अप विद द मटीरियल्स, राइट. तो मटीरियल जैसे हम अगर चार्ट के थ्रू स्टडी करें, सो जो हमारा मेजर आयरन फाउंड्री क्लस्टर इन इंडिया है, हियर यू कैन सी वेस्ट बंगाल,
Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, Punjab area and the Maharashtra. ओके, सो इसके थ्रू हमने स्टडी किया कि जो आयरन फाउंड्रीज हैं, और डेफिनेटली जहाँ पे आयरन फाउंड्रीज होंगी उन्हीं के आसपास ही उसको फर्टिलाइज करने का या रेक्टिफाई करके फाइनल शेप में लाने का प्रोडक्ट को उसी के आसपास ही आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी, राइट. सो सेकेंड स्टेप हमारा ये हो गया. थर्ड स्टेप में वंस वी हैव गॉट थ्रू, ओके आई नीड टू गो विद कास्टिंग, ये मटेरियल यूज होते हैं कास्टिंग में और इन एरियाज में मेरे को ये इंडस्ट्रीज मिलेंगी. देन यू सेलेक्ट योर अल्टीमेट इंडस्ट्री. जैसे हमने एक एग्जांपल रखा हुआ है हेला कंपनी का. दिस इज अ कंपनी विच मेक्स ऑटोमोटिव पार्ट्स. और देन यू कम अप नाउ कि फाइन, नाउ दिस इज अ कंपनी और इसके कहाँ कहाँ लोकेशंस हैं. नाउ आई विल अप्रोच. ओके, this should be the procedure by which you can select your appropriate manufacturing oriented jobs. अब आते हैं NX में, because NX will help you enter in these companies. Now here it must be mentioned that NX is the current demand. Why so? Because अपना इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे फोकस्ड है. जो मशीन डिज़ाइन है that is definitely a part, but it is a limited part. Because you have international companies acquiring the Indian market, maybe in the automotive sector or any sectors. Majority हमको ideas जो हैं वो जर्मनी या कोई अलग कंपनीज में मिलेंगे, स्पेसिफिकली मैकेनिकल की इंडस्ट्री से. तो प्रोडक्शन वाला पार्ट हमारे अंडर ज़्यादा है इंडिया में, राइट. तो इस चीज़ को गवर्न करते हुए वी कैन गो विद दी प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर्स. नाउ प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इज व्हाट NXCAM offers you. So what is exactly NXCAM? NXCAM is a computer-aided 3-dimensional designing, manufacturing as well as NS software analysis with dedicated tools for part modeling, manufacturing, having n number of application. These are a limited application, automobile, aerospace and similar mechanical engineering domains. The software provides comprehensive and integrated NC programming capabilities in a single system. This enables the use of consistent 3D model data process to be seamlessly connected, planning shop floor operations with a digital thread. That means n number of operations, right starting from which I had shown in previous slides, जो हमारे प्रोडक्शन की जो चेन होती है, ठीक है, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम जो 3D मॉडल क्रिएट करना, एनालिसिस करना, उन सबको डिजिटली ये कनेक्ट करता है टिल दी मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स. Now comes the benefit. It reduces the NC programming and machining time. This I'll show you in this workshop कि किस तरीके से NC programming को ये गवर्न करता है. और आपको कोड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन मशीनिंग ऑपरेशन को सिमुलेट करना होता है. Then it improves the surface finish accuracy and part quality. It reduces the production time and effort, क्योंकि जो सिमुलेशन का प्रोसेस है यू कैन क्लियरली सी कि स्टॉक मटेरियल कहाँ पर रिमेन हो गया, कौन से टूल से हम चेंज कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि वो मटेरियल रिमूव हो जाए. ओके, ऑपरेशन भी कई तरीके के डिवाइडेड. देन कम्स द इंक्रीज इन सक्सेस रेट ऑफ न्यू मशीन डेवलपमेंट. बढ़ेगा ही बढ़ेगा सक्सेस रेट, क्योंकि आपने उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया है ऑन सॉफ्टवेयर. देन मैक्सिमाइज द यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज. जो टूल हमको रिक्वायर होंगे इस वर्कशॉप में, दैट इज 2D स्केच टूल्स, 2D से 3D कन्वर्जन टूल्स, ब्लैंक जनरेशन, फेसिंग ऑपरेशन, रफ टर्निंग ऑपरेशन, बैक रिटर्न टर्निंग ऑपरेशन, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, प्लेनर मिलिंग एंड काउंटर मिलिंग ऑपरेशन. फॉलोइंग इज द प्रोसेस जो हम अडॉप्ट करेंगे. पार्ट क्रिएशन, ऑब्टेनिंग अ 3D मॉडल ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट. ब्लैंक जनरेशन, जिसमें हम एक्स्ट्रा मटेरियल अलॉट करेंगे. मशीनिंग ऑपरेशन, that will be requiring converting of the solid blank material into required part geometry. Okay, this will be the process. Now let's get started. So this, I guess you will be able to see the screen now. So ये जो screen है ये हमारे NX की screen है, and this is the workspace that is offered by NX. NX इज अ सॉफ्टवेयर जिसमें आप 3D मॉडलिंग, उसकी एनालिसिस और मैन्युफैक्चरिंग सिमुलेशन तीनों ही परफॉर्म कर सकते हो. इट इज़ डिफिकल्ट, अ बिट डिफिकल्ट टू ऑपरेट, इसीलिए इट इज़ जनरली रिकमेंडेड कि आप पहले पार्ट मॉडलिंग इजी सॉफ्टवेयर के थ्रू अप्रोच कर लीजिए. एग्जाम्पल सॉलिड वर्क.
तो SolidWorks is dedicated to part modeling. I'll show you one of the example. So this is the example made on SolidWorks, no downloaded content. It is throughout made by me. Okay, तो ये पूरा SolidWorks पे ही मॉडल किया हुआ है. तो this is one of the extremities that you can achieve in SolidWorks, क्योंकि वो core part modeling का सॉफ्टवेयर है, और जो भी आप इमेजिन करते हैं you can create it, and that too without dimensions. Like you need not to have कि मेरे पास पूरा डेटा हो तभी हम इसको मॉडल करेंगे. Once you register yourself in at one of our center, CAT center आलमबाग और हजरतगंज, we make sure that जो content आपको मिले that is unique and candidate can integrate जो उनकी सब्जेक्टिव नॉलेज है विथ प्रैक्टिकल्स. ओके, ताकि आप अगर कोई इमेजिन कर रहे हो यू कैन क्रिएट इट. एंड ये जो आप मॉडल देख रहे हो, दिस आई हैव क्रिएटेड एंड दिस आई हैव नॉट टेकन एनी रेफरेंस और एनी न्यूमेरिकल डेटा फ्रॉम एनी ऑफ अदर ज्योमेट्रीज. ओके, दिस इज सोनली बेस्ड अपॉन द इमेजिनेशन. सो यू कैन सी ऑल ऑफ द पार्ट, डिस्क ब्रेक, इसका कैलिपर, टायर्स, मडगार्ड, हेडलाइट, इवन इट रिक्वायर्स अ बल्ब, इसमें अंदर बल्ब भी है. इसका नंबर प्लेट, होल्डर, फोर्क, लिवर्स, क्रिपर, टैंक, कार्बोरेटर, इंजन, मैनिफोल्ड्स, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, टेलीस्कोपिक. ओके, सो इसका एग्जॉस्ट, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, हेयर, इसका एयर फिल्टर, टाइमिंग चेन एडजस्टर का इसके स्लॉट दिया, एंड नॉब्स. ओके, सो एन नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट आप बना सकते हैं. सरफेस मॉडलिंग बहुत अच्छी इसमें नहीं हो पाती, मतलब हो तो सकती है, बट यू कैन नॉट गेट वेरी हाई सरफेस फिनिश और डेडिकेटेड टूल्स एज दोज टूल्स आर अवेलेबल इन अनदर सॉफ्टवेयर. ओके, तो जो दूसरे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, एग्जाम्पल कैटिया. ओके, सो अभी ये 3D मॉडलिंग चल रहा है ना, कि कैसे हम 3D मॉडल अवेलेबल करेंगे और कौन कौन से हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं इसके. तो सेकेंड जो सॉफ्टवेयर आता है दैट इज डेडिकेटली विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ओरिएंटेड टूल्स, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है सॉलिडवर्क्स से ऑपरेट करने के लिए. दिस इज कैटिया, और ये जो करंटली आप देख रहे हो, दीज आर 3D कर्व्स, एंड मैं इसमें मटेरियल ऐड करके दिखाता हूँ आपको. यू कैन सी दिस. ओके, सो इट्स अ मिनी कूपर इंस्पायर्ड मॉडल. सो यू कैन सी दी सरफेस फिनिश, कितना भी हम जूम कर लें ये क्रैक आपको रेयर ही मिलेगा इसके अंदर. तो इट्स अ 4-wheeler, एंड इफ आई शो यू वन ऑफ द 2-wheeler, सो यू कैन सी दिस इज कावासाकी निंजा H2 आर इंस्पायर्ड बाय. अभी करेंटली बन रही है, तो जितना समय लगता है उस हिसाब से बनाते हैं. ओके, तो सरफेस मॉडलिंग, नॉट जस्ट सरफेस मॉडलिंग, you can go with the part modeling, sheet metal assembly. Even one of the highlighting part of CATIA is CATIA kinematics. Okay, that is study without consideration of forces. So here you can see this is one of the part modeling made on part this CATIA part modeling and with assembly, and this is with respect to simulation with DMU kinematics, that is kinematic study. तो इसमें आपको काइनेमेटिक स्टडी परफॉर्म करने को मिलती है. आप टाइम और एंगल के बीच में रिलेशन लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज. ओके, तो अभी हमने इसमें फार्मूला लगा के नहीं रखा, जस्ट टू शो केस यू. सो वेयर यू कैन सी, यू कैन टाइप अ न्यूमेरिकल वैल्यू और आपको पता चल जाएगा लोकेशन. फॉर एग्जांपल, अगर मैं 180 डिग्री में रखना चाहता हूँ तो आई कैन टाइप 180 डिग्री एंड आई कैन सी कि क्या लोकेशन आएगी इसकी. ओके, 45 डिग्री आपको टाइप करना, 45 डिग्री टाइप करके चेकआउट कर सकते हो. सो दिस इज द लेवल ऑफ कैटिया, एंड एक्सट्रीम लेवल्स आर देयर. आपको ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा डिजाइन करना है, यू कैन डिजाइन इट, सिमुलेट इट. और हमारे पास अगर सिर्फ डेटा अवेलेबल है कि 5 डिग्री मेरा 5 माइक्रोसेकेंड्स में परफॉर्म हो रहा है, कैटिया काइनेमेटिक्स इज केपेबल ऑफ गिविंग यू पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विद न्यूमेरिकल वैल्यूज कि बाकी लिंकेजेस कौन सी पोजीशन पे होंगे. ओके, so this is the 3D modeling part. Now these softwares, though every software involve a CAM version also, but the popular part of CAM is with NXCAM. Okay, so now let us come up to NXCAM. NXCAM का मैं आपको शोकेस करता हूँ पहले प्री डिजाइंड मॉडल, ताकि मैं आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन दिस इन मोर डिटेल्स. So this is one of the example I've made for the presentation. इसमें हमने majority of operations perform करे हुए हैं.
नाउ आई मस्ट रिवील यू दैट थिंग. देखिए, एनएक्स कैम या किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन में मेजर आपके 4 तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. नंबर 1 इज योर टर्निंग ऑपरेशन. नंबर 2 is your drilling operation. Number 3 is your planar milling operation, and number 4 is your counter milling operations. अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, जैसे ये हमारे पास पार्ट है एंड दिस आई हैव डिफाइंड एज अ स्टॉक मटेरियल. ये स्टॉक मटेरियल है और इसके अंदर जो आप पार्ट देख रहे हो ये फिनिश्ड पार्ट है. तो इस स्टॉक मटेरियल को हमें इस फॉर्मेट में रिमूव करना है कि हमारे पास ये स्टॉक मटेरियल जो मेरा फिनिश पार्ट है, आई कैन ऑब्टेन दैट. तो इसका प्रोसेस क्या होता है एनएक्स कैम में वर्क करने का प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्ट डिजाइन करना पड़ेगा. जो आपका फिनिश्ड पार्ट है आप उसे डिजाइन करेंगे. नंबर 2, आप ब्लैंक या एक्स्ट्रा मटेरियल डिफाइन करते हैं. अगर कोई लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हो. स्टेप नंबर 1 रहता है पार्ट डिजाइन, सॉलिड पार्ट डिजाइन, जो फिनिश्ड पार्ट है उसे डिजाइन करना है. नंबर 2, आपको ब्लैंक डिफाइन करना है. तो जैसे टर्निंग प्रोसेस में मेजॉरिटी हम लोग ब्लैंक क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि ब्लैंक की ज्योमेट्री डिफरेंट होती है बेस्ड अपॉन दी फिनिश्ड प्रोडक्ट. ओके, तो जैसे इसमें हमने इस तरीके की शेप बना करके रखी है ऑलरेडी. ओके, तो ये सेकेंड स्टेप है. थर्ड स्टेप में आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आते हो. इसको करेंटली जो आप मॉड्यूल देख रहे हो, जैसे यहाँ ये 3D मॉडलिंग का सेगमेंट है. ओके, देन आई विल कम टू मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट. हेयर आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में हम एंटर करेंगे और यहाँ पे मैंने ऑपरेशंस ऑलरेडी लगा के रखे हैं ताकि इसमें टाइम थोड़ा लगता है ऑपरेट करने में और रेक्टिफाई करने में, एक्स्ट्रा मटेरियल हटाने में. ठीक, तो आई विल शो यू क्यों हम ऐसा कह रहे हैं. तो ये आप देख सकते हो टर्निंग वर्क पीस. तो पहला स्टेप हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म करके रखा है इसमें टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ. दिस इज द प्रोसेस. ओके, हियर यू कैन सी इसने पूरा स्टॉक मटेरियल और मेरा फिनिश प्रोडक्ट के अंदर डिसइंटीग्रेशन किया हुआ एंड इट इज एनालाइजिंग कि कौन सा मेरा फिनिश पार्ट. सो दीज आर द ऑपरेशन विच आई परफॉर्म्ड फेसिंग. रफ टर्निंग ऑपरेशन, उसके बाद ग्रूव ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन अगेन रफ बोर परफॉर्म किया, रफ टर्निंग. सो एन नंबर ऑफ रफ टर्निंग ऑपरेशन हमने इसमें परफॉर्म किए हुए. सेकेंड ऑपरेशन जो हमने इसमें अप्लाई किया है वो ऑपरेशन है हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन. थर्ड ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किया है वो इसमें कैविटी मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया. हियर यू कैन सी कैविटी मिलिंग का एक एग्जांपल है. दिस इज काउंटर मिलिंग ऑपरेशन. देन फेस मिलिंग ऑपरेशन ओवर हियर एंड सिमिलरली अ कैविटी मिलिंग ऑपरेशन एट दिस पार्ट आल्सो. ओके, सो आई विल शो यू कि क्या इसमें प्रोसेस रहता है. तो मैंने आपको पहला स्टेप बता दी. पहले स्टेप में आपने क्या करना है, अपना फिनिश पार्ट बनाना है. सेकेंड स्टेप में आपको ब्लैंक या एक्स्ट्रा मटेरियल डिफाइन करना है. थर्ड स्टेप में आपको मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट के अंदर आना है. फोर्थ स्टेप में आपको अपना वर्क पीस डिफाइन करना है. हियर ये जो आप वर्क पीस देख रहे हो तो आपको अपना वर्क पीस डिफाइन करना है. वर्क पीस में आपको 3 पार्ट मिलते हैं. पहला अपना फिनिश पार्ट डिफाइन करना, सेकेंड ब्लैंक मटेरियल डिफाइन करना एंड एट द लास्ट आपको डिफाइन करना होगा अपना चक. अगर चक की पोजीशन डिफाइंड है तो वेल एंड गुड, तो वहां पे मशीनिंग नहीं होगी. अगर चक की पोजीशन नहीं डिफाइंड है दैट इज ऑल्सो नॉट अ इशू, तभी भी ये मशीनिंग ऑपरेशन कर देता है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा? नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहेगा हमें टूल डिजाइन करना होगा. अब यहाँ पे आपको मिलता है क्रिएट टूल का ऑपरेशन. ओके, सो क्रिएट टूल पे आपने क्लिक करना है और जो भी हमारा ऑपरेशन है, ओके, सो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो. जैसे प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन है, काउंटर मिलिंग ऑपरेशन है. प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन है, काउंटर मिलिंग ऑपरेशन है, बॉल मिलिंग ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना. अब उसके बिहाफ पे यू विल गेट सजेशन ऑफ टूल्स. तो जैसे हमने मिल प्लेनर सेलेक्ट किया हुआ है, सो आई एम गेटिंग दी मिल टूल ऑपरेशन. सो आई सेलेक्ट दी मिल टूल, अप्लाई पे क्लिक करना है और हेयर यू विल गेट दी ऑल ऑफ दी स्पेसिफिकेशन.
अब यहाँ पे एंगल का क्या सिग्निफिकेंस है, डायमीटर हम कैसे चेंज करते हैं, शैंक की लेंथ, फ्लूट की लेंथ, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, दिस यू विल गेट टू नो एंड आई विल मेक श्योर दैट यू राइट डाउन इन योर कॉपी जब आप अपना कोर्स करोगे, ठीक है। फिर इसमें शैंक लगता है, शैंक इस डिफाइन करने पे विल गेट अ शैंक लाइक दिस, ओके। इसके ऊपर आपका होल्डर आता है, शैंक होल्डर, प्रीव्यू ऑफ दिस शैंक विद शैंक होल्डर, ओके। इतना डिफाइन करने के बाद आपने ओके प्रेस करना है, आपका टूल डिफाइन हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेज में होता है अपना अल्टीमेट स्टेज, जो कि ऑपरेशन का होता है, क्रिएट एन ऑपरेशन। आपको ऑपरेशन पे क्लिक करना है, आप फेस मिलिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं, मैनुअल ऑपरेशन करना चाहते हैं, प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं, आप इसके फॉर्मेट में सेलेक्ट करोगे। नाउ अब मैं आपको एक ग्लिप्स देता हूं कि ऑपरेशंस में होता क्या है बेसिकली। देखिए, ऑपरेशन, प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन इज एसोसिएटेड विद प्लेन्स, जैसे स्टेप्स होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो दीज टू आर प्लेनर, ओके, इनमें कोई एंगल नहीं, तो हम यहाँ पे प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन लगा सकते हैं। काउंटर मिलिंग ऑपरेशन ऐसे केसेस में यूज होते हैं जहां पे फ्लिट लगा हुआ है, या आप इस सेक्शन को अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे कैविटीज है और प्लेनर नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम काउंटर मिलिंग ऑपरेशंस को यूज करते हैं। थर्ड फेज आता है आपका ड्रिलिंग का। तो ड्रिलिंग हम लोग को मालूम है, ड्रिलिंग मल्टीपल स्टेजेस में होती है। नंबर 1, पहला जो उसका स्टेज रहेगा वो आपको स्पॉट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज नॉट एज स्पॉट फेसिंग, और उसका टूल भी अलग है। सेकेंड स्टेप में आपको स्पॉट ड्रिल करना होगा। थर्ड स्टेप में आपको ड्रिलिंग करना होगा। फिर आपको अगर डायमीटर इंक्रीज करना है तो बोरिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और अगर हमें हायर सरफेस फिनिश चाहिए तो रीमिंग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इसमें पेक ड्रिलिंग ऑपरेशन एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस आल्सो यू विल गेट, ओके। उसके लास्ट में फिर हम लोग को टर्निंग ऑपरेशन पढ़ने को मिलेगा। टर्निंग ऑपरेशन वी ऑल नो कि अगर हमारा टूल जो है वो परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स द एक्सेस ऑफ माय वर्क पीस, और वर्क पीस इज टू बी मटेरियल इज टू बी रिमूव्ड बाय रोटेटिंग दी वर्क पीस, तब हम टर्निंग ऑपरेशन यूज करते हैं। ऐसे केसेस में आप जो देख रहे हो, दिस एग्जांपल आई हैव सेलेक्टेड, क्योंकि इसमें सारे ऑपरेशन हमने अप्लाई किए हुए हैं। नाउ लेट मी शो यू कि टर्निंग ऑपरेशन के किस तरीके से वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पे फेसिंग ऑपरेशन हमने परफॉर्म करा, सो यू कैन सी, ठीक है। तो हमें कट रीजन यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। कट रीजन मतलब आप कितना कट करना चाहते हो। सो हमने कट रीजन को इस पॉइंट पे डिफाइन किया हुआ है, इसके आगे कटिंग नहीं होगी, राइट। बट ये रिकमेंड करेगा कटिंग करने के लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने टूल कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है और कितनी लेवल तक की आप कटिंग करना चाहते हो, ठीक है। देन यू हैव टू कम अप विद कौन सा आप मेथड यूज करना चाहते हो। सो ऑक्सिलरी, सेंटर लाइन, थ्रेडिंग, ग्रूविंग, फिनिश ऑपरेशन या रफ। So I have selected a rough operation. Then you come up with किस लेवल का डेप्थ आपको प्रोवाइड करना है। आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं। देन दी कटिंग पैरामीटर्स होते हैं, नॉन कटिंग मूव्स होते हैं। नॉन कटिंग मूव्स का मतलब ये है कि आपका टूल का एंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट कब होगा, टूल जब कटिंग करना स्टार्ट करा है तो वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेगा, एंड ऑपरेशन करने के बाद कहाँ पे जाएगा। तो इसका जो मैंने अलॉटमेंट करा हुआ है वो 100 क्रॉस 150 पे अलॉटमेंट किया हुआ है, ठीक है, 100 X and Y में। तो ये यहाँ से टूल स्टार्ट आएगा, कटिंग करेगा, वापस इसी पॉइंट पे जाएगा। देन यूल गेट द मशीन कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल, फीट रेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। अब इसको आपको जब भी आपने सारे पैरामीटर्स असाइन कर दिए, जैसे आप फीट एंड स्पीड देख रहे हो, यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं, ओके, आरपीएम में, और फिर यूल प्रोवाइड द न्यूमेरिकल वैल्यू। फीड रेट जैसे 0.7 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन डिफाइन है। अभी आप देखना यहाँ पे कटिंग फीड रेट आता है। हमने वेरीफाई पे क्लिक किया। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ से टूल कटिंग करने के लिए अप्रोच करेगा। कटिंग करने के बाद वापस हमारा टूल इसी पॉइंट पे रिजेक्ट कर जाएगा। सो लेट अस गेट इनटू दी सिमुलेशन पार्ट। वेरीफाई पे क्लिक करना है आपको, 3D डायनामिक्स में जाना है। ये फीड रेट का नहीं है, एनिमेशन स्पीड है। हम स्लो करें एनिमेशन स्पीड ताकि आप ऑब्जर्व कर पाओ। प्ले पे आपको क्लिक करना है, यू कैन सी हियर, ओके। तो यहाँ पे मशीनिंग इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया, ओके। स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें कुछ समझ में आ रही? एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके।
ओके, सो दिस इज द ऑपरेशन है ना, हम सब ने अपना फर्स्ट ईयर में या इंजीनियरिंग में आपने इस तरीके के टर्निंग ऑपरेशन किया होगा, बट ये ऑपरेशन आप सिमुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये इसने टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब परफॉर्म करने के बाद वापस से उसी लोकेशन पे चला जाएगा जहां से इसने स्टार्ट किया था, और ये देखिए अब जा रहा है, ये 100 क्रॉस 150 पे आया, x100 y150। ओके प्रेस किया तो अब हमारा टर्निंग ऑपरेशन सेट है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, इसमें रफ टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ। रफ टर्निंग ऑपरेशन कंसिडरिंग दी पार्ट वेयर दी मशीनिंग वॉज लेफ्ट, ये अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है कि प्रीवियस स्टेप कौन सा था, क्योंकि आप चेन में चल रहे हो। ठीक है, अब मैं इसमें आपको शोकेस करता हूं। अगेन आपको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, और अब आप जनरेट वेरीफाई पे जाइए, 3D डायनेमिक्स में आएंगे। हम स्पीड थोड़ी फास्ट कर रहे हैं ताकि आप जल्दी देखो इसे। ओके, ये देखिए, and this is what this is the operation performed by system and ultimate computer aided manufacturing, you can see। यही codes if you will recall हम लोगों ने अपने पढ़े थे in CAM operation, and that was 3 formats: world address format, tab sequential format and fixed block format, and constraints, G constraints, M constraints, and constraints set the speed, S for feed rate, F। ओके, सो n नंबर ऑफ हम लोग ने कैरेक्टर्स पढ़े थे, एंड ये कैरेक्टर्स आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो इसके थ्रू। बस करना क्या है कि आपने ऑपरेशन अपना जो कॉन्सेप्ट है मैन्युफैक्चरिंग का उसको अप्लाई करना है, सिमुलेट करना है प्रोसेस को। इफ दिस प्रोसेस इज एडिक्वेट, मतलब कटिंग वगैरह सब सही हुई है, बस आपको ओके प्रेस करना है। ओके, और राइट क्लिक करना है इस पे, एंड आपको पोस्ट प्रोसेसिंग की डायरेक्शन में इसको लेकर के जाना है। ठीक है, वो भी अभी आते हैं। आप एक ऑपरेशन और देख लीजिए, ड्रिलिंग का भी देख लो, फिर मैं इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज द ग्रूविंग पार्ट। अब इस केस के लिए हमने अपना टूल चेंज किया हुआ है। ओके, ग्रुप पे हम क्लिक कर रहे हैं। सो अब ये ग्रूविंग क्या होगा, अभी जो आप देख रहे हो इसने टर्निंग प्रोसेस ऑपरेट किया। अब ये ग्रूविंग में इस स्टॉक मटेरियल को रिमूव करेगा। वेरीफाई पे क्लिक करिए, ये देखिए, एंड टूल पोजीशन हम वही देंगे जो हमने प्रीवियस दिया था। अगर आप टूल पोजीशन चेंज करोगे तो यूल गेट एन एरर, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, दिस इज दी ग्रूविंग प्रोसेस, ग्रूविंग ऑपरेशन। ग्रूविंग के बाद इफ आई एम इंटरेस्टेड नाउ, फाइन, ग्रूविंग हो गई। अब हमें इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन जैसे मैंने बताया n नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है। पहला, आपको एक स्पॉट ड्रिल करना पड़ेगा, स्पॉट फेसिंग करना पड़ेगा, फिर स्पॉट ड्रिल करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा, बोरिंग एंड रीमिंग, ये ऑपरेशंस रहते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, सो हमने प्रोसेस को थोड़ा फास्टन अप करने के लिए इसमें डायरेक्टली ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। Here you can see these are the drilling operations. You have to provide the area of cuts। तो मैं इसके ऑपरेशन में दिखाता हूँ आपको। Here you can see आपको स्पेसिफाई करने हैं होल्स, तो you can see ये इस तरीके के नंबरिंग भी अलॉट कर देगा। उसके बाद टॉप फेस डिफाइन करना होता है, ये इसका टॉप फेस है, और बॉटम फेस कहाँ तक की ड्रिल होगा वो डिफाइन होता है। देन यू हैव टू डिफाइन दी टूल। ओके, सो टूल हमने ड्रिल टूल इसमें ऑलरेडी बना के रखा है, उसको डिफाइन किया हुआ है। एंड उसके बाद आपने वेरीफाई करना है, एंड यू कैन नाउ सी। ओके, तो किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो एक टूल आएगा हमारा, ये देखिए ड्रिलिंग इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया। नाउ फाइल सी की फाइन मटेरियल जितना भी रिमूव है एकदम करेक्ट है, हमें यही सेम ऑपरेशन चाहिए है इन रियलिटी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल सेलेक्ट द ऑपरेशन, और से मैंने फेसिंग ऑपरेशन सेलेक्ट किया। पोस्ट प्रोसेसिंग ये लास्ट स्टेप रहता है, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना है। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट कि आपके पास कौन सी एक्सेस मशीन है। फॉर एग्जांपल हमने मिल 4 एक्सेस मशीन को सेलेक्ट किया। देन यू हैव टू सेलेक्ट कि किस यूनिट में ऑपरेशन हो रहा है, तो या आपकी मशीन की सेटिंग किस पे है, जैसे मेट्रिक पे है। फिर आपको अप्लाई करके ओके प्रेस करना है, एंड यू विल गेट दी रिजल्ट्स।
वो आपको NX के G कंस्ट्रेंट स्टार्ट होगा फ्रॉम नंबर सीरियल नंबर, देन यू विल गेट दी G कोड्स। जितने भी ऑपरेशंस लगे होंगे, चाहे वो M कोड्स हो, F कोड हो, S कोड हो, T कोड हो, यू विल गेट ऑल ऑफ देम। उसका एग्जाम्पल, रनिंग एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो यू विल गेट दी एग्जाम्पल ओवर हियर। वेरीफाई करने के बाद जब मैं इसको प्ले करूंगा, काइंडली ऑब्जर्व, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है इसके कोऑर्डिनेट जनरेट होने लगते हैं एक्स वाई और फीड रेट के फॉर्मेट में। ये देखिए, आप देख रहे हो 0.7 आ रहा है और एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। ठीक, सो दिस कम्स अंडर द इंटरपोलेशन एंड दिस इज द फीड रेट। 0.7 क्योंकि हमने असाइन किया हुआ था। अगर आप वेरीफाई करना चाहो, आप यहाँ पे देख सकते हो फीड रेट इज प्री डिफाइंड 0.7। ओके, सो ये सारे ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए हुए इसमें, तो मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। इन सबको आपको सेलेक्ट करना, जैसे हम एक साथ देखना चाहते हैं ऑपरेशंस को, तो आपको राइट क्लिक करना है और टूल पाथ में जाना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो कलेक्टिवली आपको दिखा देगा कि आपने अल्टीमेटली आपका क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा बेस्ड अपॉन जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ये ड्रिलिंग ऑपरेशन, ये 22 mm का ड्रिल और ये 18 mm का ड्रिल किया। Now I will show you the role of angle, okay, the role of orientation angle for your turning operation. टर्निंग ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कटिंग को। सो हियर यू कैन सी कि जो ऑपरेशन कटिंग का हुआ है वो इस सेक्टर में कर रहा है। आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये कटिंग ऑपरेशन इधर कर रहा है, ठीक है। और अब आई विल चेंज द सेटिंग ऑफ माई टूल। तो टूल वही है, ओडी आउटर डाई 55L4 टर्निंग टूल। बस हम इसमें क्या करेंगे, इसकी सेटिंग चेंज कर देंगे। टूल्स में जाएंगे, 20 डिग्री एंगल को आई रिड्यूस इट टू 14 डिग्री। जस्ट व्हाट आई हैव डन इस ओरिएंटेशन एंगल OA, इसको हमने चेंज कर दिया। नाउ यू विल ऑब्जर्व कि जो कटिंग ये कर रहा था, अब इस सेक्टर को छोड़ के इट विल कम टू मोड कन्वर्जेंस यहां पे। ओके, आप देख सकते हो। सो दिस इज द रोल ऑफ टूल माइन्यूट एंगल। जस्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट चेंज वन ऑफ द ऑपरेशन, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू बदल दी ओरिएंटेशन एंगल की। और आप देख सकते हो कि कटिंग ऑपरेशन जो मेरा यहाँ पे परफॉर्म हो रहा था वो शिफ्ट होकर इधर आ गया। तो हम कर सकते हैं 20 डिग्री में हमें यहाँ पे कटिंग मिलेगी और 14 डिग्री में हमें यहाँ पे कटिंग मिलेगा। इसी तरीके से हमने, आप जो देख रहे हो ये 4 तरीके की टर्निंग ऑपरेशन, ये बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म हुए इस पूरे को फिनिश करने के लिए। ओके, नाउ आई विल शो यू द एग्जांपल ऑन अगेन दिस थिंग कि कैसे आप दूसरे फॉर्मेट, दूसरे तरीके से इसमें कटिंग कर सकते हो। और वो मेथड है बाय कैविटी ड्रिलिंग। ओके, सो कैविटी इज अ काउंटर मिलिंग ऑपरेशन। तो आई डबल क्लिक ऑन कैविटी मिलिंग ऑपरेशन एंड आई शो यू हाउ इजी इज टू परफॉर्म कैविटी मिलिंग। आपको मेन करना क्या होता है, देखिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, यही चीज आपको सिखाई जाएगी। आपको सिलेक्शन करना होता है ज्योमेट्री के हिसाब से ऑपरेशन का। अगर मैं यहाँ पे प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन को अप्लाई करूंगा तो आई विल गेट डेफिनेटली एन एरर, क्योंकि जब भी मेरा टूल जो है वो कटिंग करने के लिए प्रोपोगेट करेगा, सो इट विल नॉट गेट अ प्लेन, सेम प्लेन पे नहीं है, प्लेन चेंज हो रहा है और एंगल में जा रही सरफेस। ऐसे केसेस में हमें कैविटी मिलिंग ऑपरेशन है, काउंटर मिलिंग ऑपरेशन को यूज करना होता है। हाउ सिंपल दिस इज टू परफॉर्म, यू कैन सी। हमने बस इसमें सरफेस एरिया को डिफाइन किया है, हाँ अपना टूल करेक्ट अप्लाई किया। यहाँ पे जो सेटिंग आपको ऑप्शन मिलता है वो है इसका रेडियस। रेडियस चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, कटिंग लेवल चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। दिस इज द कॉमन डेप्थ, हमने 1 mm की लगा रखी है। एंड द परसेंटेज ऑफ फ्लैट डाया, ये परसेंटेज ऑफ फ्लैट डाया इज द रेडियल, जो रेडियल टर्नओवर है इसका, वो चेंज करने के लिए दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। जनरेट करके आपको टूल पाथ पता चल जाता है किस तरीके से टूल कटिंग करेगा। तो यू कैन सी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। ओके, सो ये बिल्डिंग ट्रेसेस, ये आप देख सकते हो।
I will now click on verify. Verify के बाद 3D मॉडलिंग, 3D डायनामिक्स, ऑपरेशन पास कर दिए। तो ये देखिए, यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मटेरियल कट हो रहा है। स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये इतना कम मटेरियल इसलिए रिमूव कर रहा है क्योंकि इसकी सेटिंग हमने 1 mm पे लगा रखी है। इसकी सेटिंग इन्हेंस कर देंगे तो यू विल गेट ज़्यादा कटिंग पर ट्रेवल। ओके, पर ट्रेवल इसमें ज़्यादा कटिंग ऑपरेशन यू विल गेट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म होगा, तो सर ये है सेक्टर प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन का। आपको करना क्या है, प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन यहाँ से ऑप्ट करना है, ऑपरेशन में जा करके प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन, और हमने एरिया मिलिंग ऑपरेशन लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज अ फ्लैट एरिया, तो यहाँ पे प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन ऑप्ट है। हियर यू कैन सी, इसमें भी परसेंटेज ऑफ फ्लैट आया आपको मिलेगा ऑपरेशन, और ये टूल की पोजीशन। 3D डायनामिक्स में जाके इसको रिड्यूस करेंगे एंड वी कैन प्ले एंड वॉच। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो आप ठीक। तो इस तरीके से प्लेनर मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एंड जो यहाँ पे हमने टर्निंग ऑपरेशन से अंदर कैविटी क्रिएट करी है, एक दूसरा भी तरीका होता है कैविटी मिलिंग ऑपरेशन का यूज करके। तो ये कैविटी मिलिंग ऑपरेशन से भी आप कटिंग ऑब्टेन कर सकते हो। Here you can see 2 mm लगाया हमने। अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं से 6 mm कर दें, तो जो आपको मैश दिख रहा है, माइन्यूट मैश, वो और कोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप कट लेवल्स देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज कलर के। ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन इसमें एक ऑपरेशन और होता है कि अगर आप ट्रिम बाउंड्रीज करना चाहते हो, जैसे अगर आप सिर्फ बॉटम के फेसेस को सेलेक्ट करोगे तो टूल क्या करेगा, टॉप से इसे भी कट करना स्टार्ट करेगा। तो ट्रिम फेसेस हमने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, तभी आप ऑब्जर्व करो इसने सिर्फ इतने पार्ट को लिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर, ये ट्रिम फेसेस है। अब यहाँ पे ट्रिमिंग नहीं करेगा, मटेरियल रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ इतने फेस में ही मटेरियल रिमूव करेगा। ओके, तो 3D डायनामिक्स और प्ले करेंगे इसे। ये आप एरिया देख सकते हो, ये एरिया हमने मिलिंग ऑपरेशन से रिमूव किया था, एरिया मिलिंग। और कटिंग आप देख सकते हो कि 6 mm की ये कटिंग कर रहा है। So this is how you go with the machining process in CNC. और procedure is pretty simple, but you require proper guidance इसको ऑपरेट करने के लिए। ओके, एंड ऑफ कोर्स एन एक्सपीरियंस फैकल्टी। तो इसका प्रोसेस आई रिपीट अगेन। जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, प्लीज़ मेक श्योर कि आपको इसमें पार्ट पहले ही बनाना पड़ता है। फिनिश्ड पार्ट हम पहले बनाएंगे। सेकेंड नंबर पे हम लोग इसमें ब्लैंक डिफाइन करते हैं। आप ब्लैंक वर्कपीस से भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें वर्कपीस का एक सेगमेंट रहता है। उसके थ्रू नहीं डिफाइन करना चाहते हो अगर आप ब्लैंक, तो आप ब्लैंक ज्योमेट्री बना लीजिए। चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। पॉज किया, जो वर्कपीस आपको यहाँ पे मिलेगा, मैं इसमें शोकेस करता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे इधर मैंने बना के रखा हुआ है, ये इसका पार्ट, ठीक, ये पार्ट है फिनिश पार्ट। और ब्लैंक, स्पेसिफाई ब्लैंक में अगर आप जाते हो तो आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ऑफसेट फ्रॉम पार्ट है। ऑफसेट फ्रॉम पार्ट का मतलब होता है कि अगर फॉर्जिंग या कास्टिंग प्रोसेस है, आपका पार्ट बना हुआ है, तो उस पर 2 mm या 3 mm का एक्स्ट्रा मटेरियल है, ऑफसेट है पूरी बॉडी पे, वो रिमूव करना चाहते हो तो आप ऑफसेट यूज करते हो। बाउंडिंग ब्लॉक और बाउंडिंग सिलेंडर। बाउंडिंग ब्लॉक होता है XYZ, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक। जैसे अगर हम इसमें बाउंडिंग ब्लॉक लगाएं, ये देखिए, ये बाउंडिंग ब्लॉक, ओके। अगर हम इसमें बाउंडिंग सिलेंडर लगाएं,
सो दिस विल एक्वायर दी सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री, और आउटर पेरिफेरी का रेडियस लेता है। और अगर हमने अपना जैसे पार्ट की बाउंड्री ऑलरेडी बना के रखी हुई है तो हम ऑप्ट करते हैं ज्योमेट्री को, जो कि हमने बना के रखी हुई है। ये मेरी पार्ट की बाउंड्री है ना, ये अलग पार्ट बना के रखा हुआ है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करके रखी है, वो हमने सेट करके रखा हुआ है इसमें। ओके, देन कम्स योर चक। तो अगर आप चक डिफाइन करते हो, चक में कोई ऐसा इशू नहीं है। चक में हम लोग को एक 3D पार्ट अलग से बनाना होता है। जो इसमें 3D मॉडलिंग का सेगमेंट है उसमें बूलियन ऑपरेशंस होते हैं। तो बूलियन ऑपरेशन में हम ना तो यूनियन यूज करेंगे ना ही इंटरसेक्ट लगाएंगे, ठीक है। उसको इन्फर्ट कर देते हैं, वो अलग अलग बॉडीज रहेगा, मतलब डिस्क्रीट बॉडीज। ओके, तो वो डिस्क्रीट बॉडी में आपका ये बॉडी अलग से सेलेक्ट हो जाएगी, जैसे कि हमने इसमें लगा के रखा। इस बॉडी को आप सेलेक्ट करोगे तो अंदर वाली बॉडी नहीं सेलेक्ट होगी, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये वर्क पीस में इस तरीके से हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पार्ट को बनाया। सेकेंड स्टेप हमने ब्लैंक को डिफाइन किया। थर्ड स्टेप मैन्युफैक्चरिंग में आ गए और वर्क पीस में जाकर के सेटिंग करी। नेक्स्ट, अगर आपका मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम वेरी कर रहा है तो आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटर है कि अगर आपके वर्क पीस के परपेंडिकुलर है। ओके, देन वर्क पीस का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करने के बाद यू गो विद दी वर्क पीस सेटिंग्स, जो कि बताया आपको। फिर आप अपने टूल में जाओगे, टूल क्रिएशन करोगे। टूल क्रिएशन के बाद ऑपरेशन क्रिएशन करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद सारा वैलिडेशन के बाद देन एट द लास्ट जब आपको मिल जाए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क, दैट मीन्स ये पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए आपका रेडी है, फाइनल कोड जनरेशन के लिए रेडी है। बस आपको बस वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फेसिंग या जो भी ऑपरेशन उसको सेलेक्ट किया, पोस्ट प्रोसेसिंग में गए, अपनी मशीन सेलेक्ट करी, यूनिट सेलेक्ट किया और अप्लाई एंड ओके प्रेस किया। ओके, so this is what you will get to learn in the course of NXCAM. So this is how you generate the codes and simulate the process of machining operation using NXCAM. Okay, not just this operation, this I intentionally took क्योंकि इसमें ड्रिल भी है, इसमें टर्निंग भी है, इसमें काउंटर मिलिंग ऑपरेशंस भी यू कैन ऑब्जर्व। ओके, तो इसी तरीके के कोई भी पार्ट्स हैं, चाहे आप किसी बाइक के पार्ट ले लो, कंसीडर कर लो, किसी भी तरीके के पार्ट अगर आप मशीनिंग के थ्रू ऑब्टेन करना चाहते हो, NXCAM इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग यू दोज टीडीएस कोड्स जो हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं। वो कोड्स आपको इन जस्ट वन गो आपको मिल जाएंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है मशीनिंग का, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा with the help of NXCAM. Okay, so at the last, just I would like to say that you can opt the course and increase the chance of placement in India as well as abroad. अगर आप प्रोडक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़रूर इसको ऑप्ट करें। इवन अगर मशीन डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ मशीन डिज़ाइन। विदाउट दिस द मशीन डिज़ाइन प्रोसेस इज नॉट ओवर। ओके, और डिज़ाइनिंग की अगर बात करोगे तो वो दो सेक्टर में आता है। पहला सेक्टर आपका होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन का, और दूसरा सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग में डाई डिज़ाइंस का। ओके, तो आपने प्रोडक्ट तो डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अगर वो कास्टिंग से जा रहा है तो उसकी क्या डाई का डिज़ाइन होगा, टॉलरेंसेस आप कैसे लीव करोगे, उसकी अलग से डिज़ाइन होगी। ठीक, तो यू शुड डेफिनेटली गो विद सच काइंड ऑफ कोर्सेज। सो दैट्स ऑल, एंड देयर इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पेशल ऑफर if there are candidates, interested candidates want to go with NXCAM, eager to join the course, then you can register yourself in NXCAM latest by next week Thursday, and you will get GD&T course which is above than 3,000 free of cost, along with NXCAM course. Okay, so also you'll get the free of cost that book. Okay, that book you'll get free of cost with this course. Okay, so the deadline is next week Thursday. If you are interested in this course, you can enroll yourself and you'll get the free of cost GD&T hard book, not the soft copy but the hard copy. Okay, so anything कुछ आप पूछना चाहते हो? Was this valuable for you all? समझ में आई कुछ चीजें आपको? Yes sir. Okay,
सो कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. Okay. Thank you very much. So we'll meet in some another session, and if you are interested, you can kindly join the course, and we'll meet on the offline or online format. Thank you very much.